Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I've been taking UGC Net Paper 2 Commerce for a while now. And we have been covering Unit 7 titled Banking and Financial Institutions. Right, so I've already made two videos on this unit, and we have covered majority of topics in depth, right? But as you know, that the final touch of your learnings comes from practice. Anything that you should be confident about comes only when you have practiced a lot. Okay, so in today's class, what we will do is basically practice, and what is the best thing to practice is previous year questions. They actually that's how you test the water, that for the examination how much you are prepared. See, there are two things, that you are prepared, and second is for the examination. I've always been saying this, that you have to clear the examination. Knowledge is important, but your primary aim and goal should be clearing the exam. Okay, तो वही मैंने आपको पहले भी बताया, that your aim and goal and ambition should be about clearing the exam. So what's a better way to know what's the pattern of the exam? तो pattern को जानने के लिए the best way is to look at the previous year questions, learn and maybe try to decode what's there that can be asked from this unit. ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं that you can predict the examination, but you can identify what are the topics which are very important, which are very crucial, and how the questions are being framed, right? So how much do I have to study? How much in depth do I have to study? As you know, because majority of topics are so vast, it's like you won't be able to cover the whole syllabus. But if you prepare smartly and plan accordingly, you can do that, and that's where the previous year question plays a role. And in today's class, what we will do is practice 20-year previous questions, and in 20 years previous question की practice का simple सा rule है. See, first thing is I'll display पे you will get the question and I'll let you attempt the question from your end. What you think the right answer is, ठीक है? उसके बाद कुछ टाइम के बाद I'll tell you what the right answer is. It could be wrong, it could be right, but that's how you have to practice the questions. That's how you have to know what your intuition is saying about that question, whether it is right, whether it is wrong, and what you have to learn. All of that comes along with it. ठीक है, तो 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है. होल यूनिट 7 के ऊपर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज पार्टिसिपेट, एंड हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इज थ्रू कमेंट सेक्शन. अब कमेंट सेक्शन में करना क्या है, अपना स्कोर मेंशन करना है, जितना भी आपके क्वेश्चंस राइट हुए. आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट राइट, and you have to be very fair and honest. So when you are honest with yourself, the chances that you will succeed gets higher. So comment section में you have to mention your score, how many questions you got right, and then towards the end of the video we'll assess what should be the ideal score like you should be getting in such 20 previous year questions, right? So start करते हैं with first question, and I'll give you some time as I promised. अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेसल 3 फ्रेमवर्क इन बैंकिंग रेगुलेशंस. देयर आर 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन क्या है, एनहांसिंग बैंक कैपिटल एडुकेसी. सेकंड है, मिटिगेटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. थर्ड इज रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट, एंड फोर्थ इज इंश्योरिंग फेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस. ओके, सो this has 4 options, and Basel 3 network I have already covered in one of my prior videos. तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू है. क्या है Basel 3, इसके बारे में मैंने एग्जैक्टली बहुत डिटेल में पढ़ाया है. तीनों बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 कब आया था, चलो मैं वो आपको बता देता हूँ. 2010 में आया था बेसल 3. अभी किसके बाद आया था, आफ्टर मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस दैट वी सफर्ड इन 2008, राइट? हम देखते हैं मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उससे रिलेटेड ही बेसल 3 फ्रेमवर्क आया था. अब क्या क्या इसमें हमने बातें करी थी, उससे आपको पता लगाना है कि व्हाट वुड बी द राइट आंसर. ठीक है,
So, because I think I have covered this in the video, you will be able to guess what would be the right answer. तो फर्स्ट है देखो बैंक को कैपिटल एडुकेसी मेंटेन करना है, मतलब कैपिटल इतना एडुकेट रखना है अपने आप को बैंक के पास. एंड जो हमारा दूसरा ऑप्शन जो इसमें सही है दैट इज इंश्योरिंग फेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस. सी व्हाट यूजुअली हैपन, इसको ना अगर देखो ऑप्शन को याद करने से बेटर है स्टोरी को याद करना कि हुआ क्या था. 2008 का जो मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो बिकॉज ऑफ पुअर मॉर्टगेज, राइट. जो हमारे जो लोन्स वहाँ पे कंज्यूमर लोन्स जो दिए जा रहे थे, होम लोन जो दिए जा रहे थे, so basically US में they were giving home loans to anyone. The mortgage wasn't being thorough, wasn't being assessed कि exactly इनके पास है क्या. What if they are not able to repay the loan tomorrow? So there could be a huge crisis, right? And that eventually happened because people didn't have that much money. If they are not able to repay the loan, the bank has to suffer the loss. ठीक है, तो वही वहां पे लेंडिंग प्रैक्टिसेस के बाद में फेयर करने को, और उसके पास बैंक के पास भी दे शुड हैव इनफ मनी, राइट. सो बैंक में बेसिकली क्या कर रहा है कि वो लेंड कर रहे जा रहा है, आगे दे जा रहा है, आगे दे जा रहा है. दे आर नॉट कीपिंग इनफ और सफिशिएंट मनी विद देम, एंड उसकी वजह से क्राइसिस जैसा सिचुएशन आ सकता है. तो दे टॉक्ड अबाउट इनहैंसिंग बैंक कैपिटल एडिक्वेसी. वी आर टॉकिंग अबाउट इनहैंसिंग, बढ़ाने की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी बिकॉज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो केम इन बेसल 1. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. When considering regulatory bodies in the financial sector, which statements are accurate or is accurate? ठीक है, so you have 4 options. You have to pick the right one. I think this one is pretty easy if I'll say, right. चार ऑप्शन है, यू हैव टू कंसिडर रिगार्डिंग रेगुलेटरी बॉडीज. इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्यूरेट, मतलब कहने की बात है सच्ची है. ठीक है, पहला क्या लिखा है कि IRDAI रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट, सेबी ओवरसीज म्यूचुअल फंड, RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड आउट ऑफ द 4 फॉलोइंग स्टेटमेंट यू हैव टू पिक द राइट वन. ठीक है, आई वोंट टेक लॉन्ग इन दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज फेयरली इजी. सो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है ये, SBI ओवरसीज म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट. सो द फर्स्ट वन गेट्स रॉन्ग. IRDAI डजंट रेगुलेट स्टॉक मार्केट, सेबी डज. एंड इसकी अगर आपको फुल फॉर्म पता है, ये है आपका हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपॉजिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपॉजिटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो इससे होता क्या है, IRDAI से तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं, तो ये ही रिस्पॉन्सिबल होगी इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, RBI नहीं है. RBI किसके लिए, वो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है. ठीक है, तो सिर्फ ओनली बी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. जस्ट स्लाइड चेंज. ओके, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट. RBI किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए. एंड उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारा कॉइन इशू करता है, एज वी ऑल नो. ठीक है, तो सेबी जो है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, 1992 में फॉर्म हुई थी. सेबी एक्ट जो है हमारा, जो इसमें एक्ट की बात करूं, जब ये एक्ट में फाइनलाइज हुई थी तो 1992 में हुई थी. 1990 में बॉडी बनी थी. उसके बाद RBI के बारे में इसका 1934 में एक्ट है. इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था. हेडक्वार्टर्स पहले कहाँ था, 3 साल कोलकाता, उसके बाद मुंबई परमानेंटली शिफ्ट हो गया था, राइट. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की. विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रीपे बोरोड मनी along with interest at specified intervals. ठीक है, is it equity, is it derivative, is it bond, is it certificate of deposit? Which financial instrument
represent a contractual obligation to repay borrowed money along with interest at specified intervals. So this has 4 options. You have to pick the right one. This is I won't say way too tough, but yeah, fairly like on the easier side. If I have to be specific, on the easier side. This is not a tricky question. This is, I'll say, on a easier side question अगर इसको मैं बोलूँ तो. इसमें बात करी कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही करना है टू रीपे borrowed money along with interest at specified interval, right? So it is bond. I hope you all know this. Equity का पता है आपको, ओनरशिप मिल जाती है. डेरिवेटिव में इट्स बीइंग डिराइव्ड बाय एन अंडरलाइंग एसेट. एक अंडरलाइंग एसेट होता है, उससे वैल्यू डिफाइन करी जाती है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इट्स मोर और लेस लाइक बॉन्ड बट एग्जैक्टली नॉट लाइक बॉन्ड. ठीक है, तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता, रीपे करना होता है बोरोड मनी, और स्पेसिफाइड इंटरवल्स नहीं होते हमारे सीओडी में. बॉन्ड में होते हैं कि आपको इस टाइम पे आपका इंटरेस्ट मिलेगा और अल्टीमेटली आपको अपना मेच्योरिटी डेट पे आपको क्या मिलेगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज? एक स्टॉक एक्सचेंज का मेन फंक्शन क्या होता है? 4 ऑप्शन है, यू हैव टू पिक द राइट वन. दिस came in 2018, so as you can see it's been bit far. थोड़ा पहले पूछा गया है, बट तब थोड़ा कह सकते हैं थोड़े इजियर क्वेश्चन पूछे जाते थे बिकॉज दिस इज ऑन इजियर साइड इफ आई हैव टू इवैल्यूएट. इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज? पहला पॉइंट इसमें ये दे रखा है, फैसिलिटेट गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रांजेक्शंस, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ओनरशिप सिक्योरिटीज, मैनेजिंग फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, regulating mutual fund operations. So I don't think so anyone would have a doubt in this and will tick the right option number B, because इसमें और कुछ है नहीं कि एक प्लेटफॉर्म ही देता है जिसमें आप ओनरशिप को, सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हो. एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रेड कर सकता है, बायर सेलर मीट करते हैं, वही काम होता है प्लेटफॉर्म का. स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म ही है. जैसे हमारे इसके एग्जाम्पल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा, सो दे मस्ट हर्ड अबाउट रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस एज वेल, बट as of now the regional stock exchanges are non-existent. All of that has merged into national stock exchange and Bombay stock exchange still exists. ठीक है, right? Let's move to question number 5. Which financial institution plays a crucial role in fostering entrepreneurship and innovation by providing risk capital to startups? Okay, this is a fairly moderative question जिसकी अगर हम बात करें, we are talking about startup culture which has got a boom in last decade or so. दूसरी बात क्या है कि अगर आप इसको इस क्वेश्चन को लॉजिकली सोचोगे then you can reach to the right answer. Why? Because see, startup culture is not only particular to India. It's not that only in India we are seeing startups. दूसरी बात क्या है, इनका जो modus operandi होता है, that how do they operate, it's more or less same in all the countries. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया है. बट एक इंस्टीट्यूशन की, इस क्वेश्चन में पूछा गया एक इंस्टीट्यूशन जो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को फॉस्टर करने का, मतलब बढ़ावा देने का, बाय प्रोवाइडिंग रिस्क कैपिटल. सी व्हाई इट इज रिस्क कैपिटल? बिकॉज इन स्टार्टअप यू नेवर नो that this startup will actually be something good. ठीक है, startup में there is a pretty huge amount of risk. You never know whether this startup will succeed or not. And we are talking about initial stages here. We are not talking about once they have been established, when they have been accepted by the consumer. We are talking about the initial stages, right? So right answer for this is venture capital firms, VC firms बोलते हैं हम short form में. तो VC फर्म्स होती हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल है आई गेस सिकुआ कैपिटल फर्म्स. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स. ये आपका सिलिकॉन वैली में है, राइट? और मैं कोई इंडियन का एग्जाम्पल हो तो एंजल इंडिया फर्म्स करके है. तो दीज आर वेंचर कैपिटलिस्ट. काम क्या है इनका? छोटे जो बहुत
नेसेंट स्टेज पे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक्चुअली दे नीड मनी टू एक्चुअली ग्रो, एंड मे बी दे हैव द आइडिया बट नॉट द मनी. तो मनी वाला पार्ट कौन पूरा कर रहा है? ये हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट. अब सी, इट्स नॉट ऑल अबाउट सक्सेस रेट, बट वंस यू प्रोवाइड मनी देयर इज अ कल्चर दैट बीइंग डेवलप्ड दैट मोर पीपल आर गोइंग टू टेक रिस्क, else everyone will don't want to take risk, right? Taking risk is not something that comes to people naturally. उसके लिए either you loan, it's more an environment based thing. ठीक है, अगर आप देखते हो if people around you are taking more risk, they're actually wanted to grow, outdo themselves. तो उसकी वजह से you have to have institutions who are ready to back you up. You have the best ideas but you don't have the money, then वो प्रॉब्लम है. तो आइडियाज होने चाहिए, तो और पैसे की काम जो हमारा है वो वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं. ठीक है, तो दे ऑब्वियसली एक्वायर इक्विटी और ओनरशिप एंड दे गो थ्रू द मॉडल, कंपनी मॉडल, और देन दे बेट ऑन इट. ठीक है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पेक्युलेटिव, बट हाँ वो बेट करते हैं इस पे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. What is the primary purpose of open market operations conducted by central bank? चार ऑप्शन है, you have to pick the right one. Open market operations. ठीक है, हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस जनरली किसके लिए दिए जाते हैं? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए. मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो भी हमारी मनी रिलेटेड पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक करता है, राइट? मैक्रो पॉलिसीज होती हैं, और इसका जो मेजर है काम, ये क्या करती है एग्जैक्टली? सी, ये मनी के आउटफ्लो को इम्पैक्ट करती है कि कितना पैसा एक्चुअली में मार्केट में रहेगा और कितना पैसा नहीं रहेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज एक्चुअली बीइंग सीन एज कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी, दोनों में यूज करी जा सकती है. ठीक है, एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं. और मॉनेटरी पॉलिसी जैसे मैं बता रहा हूँ एक मैक्रो पॉलिसी है जिससे आप मनी सप्लाई की, मनी कितनी है इकोनॉमी में, उसको इम्पैक्ट कर सकते हो. ठीक है, अब ये है क्या ओपन मार्केट ऑपरेशंस? होता क्या है? सी, सेंट्रल बैंक क्या है, एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, राइट? गवर्नमेंट बोलती है कि, गवर्नमेंट बोलती है और ये खुद भी बॉडी है, सो दे रियलाइज दैट inflation is going high, you have to control or regulate interest rate and money supply. अब होता क्या है कि लेट सपोज बहुत ज्यादा ही जैसे इन्फ्लेशन हाई हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, सो देयर हैज टू बी सम मेजर्स टेकन बाय द आरबीआई, इसको कंट्रोल करना है. अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? लोगों के पास जब पैसा इज मोर, मनी सप्लाई इज मोर एंड द प्रोडक्शन इजंट. ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, लेट सपोज एक गुड है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक गुड है जैसे एक ऑरेंज ड्रिंक बॉटल. ठीक है, जैसे आप गेटोरेड का एग्जांपल है, एंड देयर आर 2 पीपल. अब इसका प्राइस जो है 10 रुपए है. वन ऑफ द, ये दोनों लोग जाते हैं, अब वो दोनों को ये ड्रिंक चाहिए. ठीक है, लॉजिकली समझना, दोनों को ये ड्रिंक चाहिए, वो 10 रुपए की बोतल है, एक ही बोतल है, और ये 2 लोगों को चाहिए. अब गेट लिमिटेड है एंड दे हैव मनी. अब हुआ क्या? दे विल गो ऑन अ प्राइस वॉर. सो हूसोएवर वुड हैव मोर मनी वुड एक्चुअली बाय द ड्रिंक. और ये 10 रुपए की भी नहीं मिलेगी, फिर आपको 1000 की मिल जाएगी. हम बोलते हैं ना कि प्राइस जो है डिटरमाइन करा जाता है लोगों की वजह से. तो अब लोग जितना दे आर एबल टू स्पेंड मोर, जब इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, द प्राइसेस गोज अप बिकॉज पीपल आर एबल टू स्पेंड मोर फ्रॉम व्हाट दे कुड, फ्रॉम व्हाट दे जनरली डू. अब होता क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आप चाहते हो कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाए मार्केट से. तो आप क्या करोगे? आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, इनको फ्लोट कर दोगे. अब फ्लोट कर दोगे क्या मतलब है कि मार्केट में जाएंगी. सो हु विल बाय देम? बैंक्स. बैंक्स को बोला जाता है दैट यू हैव टू बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और अच्छे रिटर्न से मिल जाते हैं. तो बैंक जनरली क्या करता है, पैसा आरबीआई को दे देगा,
और सिक्योरिटीज अपने पास ले लेगा, ठीक है। सिक्योरिटीज जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो बैंकों के पास चले जाएगी, दैट दे हैव टू होल्ड, एंड जो मनी है वो आरबीआई के पास आ जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे कम आ जाएगा। सो दिस इज द मार्केट ऑपरेशन जो होता है। एक्सपेंशनरी में इसका ऑपोजिट होगा, जैसे आपको बढ़ाना है, आप देख रहे हो कि डिफ्लेशन हो रहा है या फिर पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मच, तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, जो बैंक्स के पास है, आरबीआई क्या करेगा, वो खरीद लेगा, और जो पैसा है उनके पास वो बैंक्स के पास चले जाएगा, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स के पास। और जब ज्यादा बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो दे विल डेफिनेटली लेंड का मतलब क्या है, वो और आगे पैसा ट्रांसफर करेंगे, दे वोंट कीप मनी विद देमसेल्फ, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन इज regulating interest rate and money supply, ठीक है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। कंट्रोल करना इन्फ्लेशन वो नहीं है मेन है, बट आपको इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, दैट इज योर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पर्पस। आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक फॉर इंप्लीमेंटिंग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अभी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, हमने अभी से ही पढ़ा। सो दिस क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल ऑप्शन, मतलब मल्टीपल राइट आंसर्स। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जिसमें यू आर टेकिंग मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी, व्हाई, बिकॉज आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, हमने अभी देखा कैसे काम करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, सिक्योरिटीज जो है वो फ्लोट कर देगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक बाय करेंगे, कमर्शियल बैंक जब वो बाय कर लेंगे तो वो पैसा आरबीआई के पास चले जाएगा, मार्केट से बाहर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो भी बैंक्स आगे लेंड नहीं कर पाएंगे। इंक्रीजिंग द डिस्काउंट रेट, ओके, सो दिस इज ऑल्सो, डिस्काउंट रेट क्या होता है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्शनरी है, अब ये बैंक्स जो है ये भी सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं पैसे, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, लेंड करता है बैंक्स को, तो एट डिस्काउंटिंग रेट, मतलब अगर डिस्काउंटिंग रेट 4% है, तो अगर बैंक को कल को जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल बैंक से वो 4% पे पैसा उठा सकता है। अगर हम इसको बढ़ा दें, 4.5% कर दे, तो मतलब बैंक को अगर और पैसे की जरूरत है तो उसको 4.5% पे पैसे उठाने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक से, तो वो जो मेजोरिटी ऑफ पैसा वो रखेगा कि वो उसको वापस कर पाए, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग रेट से आप बैंकों को बोलोगे कि जो जिस रेट पे आपने लेंड करा ना वो रेट रिवाइज हो गया, महंगा हो गया, तो आप ज्यादा पैसे लेंड मत करो, हमें भी आपको रीपे करने हैं। मतलब यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं पैसे। अब जैसे मैंने डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा दिया है तो अब मुझे ज्यादा रीपे करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक को वापस, तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्ट करेगी। अब कैश रिजर्व रेशियो जो है लोअर करना, लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशियो, ये सही होगा कि गलत होगा ये बता। सी होता क्या, हम कैश रिजर्व रेशियो का क्या मतलब है, आपको इतने पैसे बैंक के पास रखने, मतलब सिंपल सी बात है। मैंने आपको सीआरआर रेशियो के बारे में पढ़ाया था, एसएलआर रेशियो के बारे में पढ़ाया था। तो सीआरआर इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक हैज टू कीप विद सेंट्रल बैंक। अगर मैं इसको कम कर दूंगा, मतलब सेंट्रल बैंक के पास मुझे कम पैसे रखने पड़ेंगे, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा। इफ इट इज माइनस, मतलब कम कर दिया तो एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा। इफ इट इज प्लस, इंक्रीज हो जाएगा, सो डेफिसिट हो जाएगा, मतलब मेरे पास कम पैसे बचेंगे लेंड करने के लिए, ठीक है। तो अब जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो इस केस में कॉन्ट्रैक्शनरी नहीं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, तो ये तो नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और क्वांटिटी ईजिंग भी इट्स मोर और लेस द सेम एज कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कि इतना आपको ये भी हमारा ये जो क्वांटिटी ईजिंग है, दिस इज यूज फॉर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज नॉट यूज फॉर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का हमेशा ये चीज याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, कि आप पैसों को कम कर रहे हो, मनी सप्लाई को कम कर रहे हो मार्केट में। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 1 and 2, okay. Okay, so let's move on to the next question, that is differentiate between schedule and non-schedule banks, and 4 statements are there.
You have to pick the right one because there are multiple answers, so you have to select more than one option. ठीक है. Scheduled banks are regulated by the central banks. Non-scheduled banks are not eligible for loans from central bank. Scheduled banks are listed in second schedule of the RBI Act. Non-scheduled banks are exempted from maintaining cash reserve ratio. Okay. अब आपको पिक करना है इसमें क्या डिफरेंस है schedule एंड नॉन schedule बैंक्स में. Right. So this question is also on easier side. Why? Because I have already taught this schedule and non-schedule banks बहुत डिटेलिंग में इनिशियल डेज में ही. राइट. और इसमें कुछ छोटी सी मिस्टेक भी है, तो इफ यू नो देन यू कैन पिक द राइट थिंग, उसको भी आप पता लगा पाओ. सो लेट्स गो टू ऑप्शंस वन बाय वन. एक एक करके कोई एक ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं और फिर पता लगाते हैं क्या सही आंसर होगा. Scheduled banks are regulated by central bank. We all know this. ठीक है. Non-scheduled banks are not eligible for loans from the central bank. ऐसा नहीं है. See, they are also eligible for loan. लोन तो मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको लोन ही नहीं देंगे. तो non-scheduled banks are not eligible for loans from the central bank. This is a wrong statement. Scheduled banks are listed in the second schedule of the Reserve Bank of India Act. ठीक है. तो 1934 रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट सेकेंड शेड्यूल में ही ये मेंशन है शेड्यूल बैंक्स. ओके. नॉन शेड्यूल बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग कैश रिजर्व रेशियो. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन सम अमाउंट ऑफ मनी इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो. वाई? बिकॉज सी होता क्या है, दे आर नॉट अलाउइंग कि डिपॉजिट हो आपके पास, मतलब सेविंग नहीं अलाउ करती पब्लिक से. बट ऐसा ना हो कि ये कल को दीज बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स, दे रन आउट, ये पैसों से रन आउट ना हो जाए, भाग ना जाए यहाँ से. तो इसलिए भी इन्हें कुछ मेंटेन करना पड़ता है कैश रिजर्व रेशियो. राइट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 and 3 ओनली. दैट इज व्हाई आई सेड यू विल पिक द राइट ऑप्शन. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 and 3 ओनली. ठीक है. राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 9. अब बात करते हैं how does financial inclusion contribute to the banking sector development. 4 ऑप्शन है and you have multiple right answer in this question as well. This is question number 9 and I hope that you are also practicing the questions. I'm giving you some time, and in that time, like right now also, while I'm dictating or discussing this question, you have ample amount of time to attempt or try this question on your end. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है, तो इसका यूटिलाइजेशन करो और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा उसको सोचने की कोशिश करो. ठीक है. अब क्या है, हाउ डज फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्रीब्यूट टू द बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट? सिंपल क्वेश्चन है, बट सबसे पहले मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करूं. से इंक्लूजन का मतलब क्या है? हर किसी को एक तरीके से इक्वल समझना, हर किसी के लिए वो चीज बनना. अब क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है? लेट्स सपोज बैंक्स है, बैंक्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कौन रहा है? अगर मैं कल को बोल दूं कि बैंकिंग सर्विस जो है दैट इज ओनली फॉर रिच. ठीक है. रिच पीपल हु हैव इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज पर मंथ, इसके नीचे वालों के पास तो बैंकिंग सर्विस देंगे ही नहीं. वुडंट बैंकिंग सेक्टर ड्रास्टिकली फॉल? जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो एकदम से कम हो जाएंगे. मेजोरिटी ऑफ पीपल विल एक्चुअली विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, विल गो ऑन स्ट्रीट्स, विल गो ऑन प्रोटेस्ट. तो होता क्या है, ऐसा नहीं है. फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है कि बैंक्स भी जो है अपनी सर्विस हर किसी को दे. हर कोई जो एलिजिबल है, मतलब जिस एज में आ चुका है, जो एलिजिबल है, उसको बैंकिंग सर्विस मिलनी चाहिए और हर किसी को मिलनी चाहिए. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक मेजर गोल था कि मेजोरिटी ऑफ इंडिया हैड पुअर पॉपुलेशन. पुअर पॉपुलेशन को सर्व कौन करेगा? देखो, प्राइवेट बैंक तो कभी नहीं करेगा. प्राइवेट बैंक्स रन ऑन प्रॉफिट मोटिव. सो हु विल सर्व द पुअर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली पब्लिक बैंक. तो पब्लिक बैंक की एक अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया में.
ठीक है। हाउ डज फाइनेंशियल इंक्लूजन कॉन्ट्रीब्यूट टू द बैंकिंग सेक्टर डेवलप? सी अब क्या है, बैंकिंग के जो आपके ब्रांचेस हैं वो बड़े होंगे, मेरे को इंक्लूड करना है लोगों को, तो मैं क्या करूंगा, मैं दिल्ली में ब्रांच खोल देता हूँ और मैं क्या करता हूँ दिल्ली एनसीआर में एक ब्रांच खोल लेता हूँ दिल्ली में। तो एनसीआर के लोग में जितने लोग आ जाएंगे दिल्ली, उनके तो बैंक में ब्रांच खुल जाएगी, जो नहीं आ पाएंगे उनकी नहीं खुलेगी। ऐसा होता है क्या? नहीं। वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बैंक ब्रांच। वाई? बिकॉज जितनी ज्यादा नंबर होंगे बैंक के ब्रांचेस का, उतने ही ज्यादा लोग आएंगे उस एक्चुअली इस बैंक के ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाने, और उस अकाउंट को खुलवाने से क्या होगा, हमारा जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। रिड्यूस करता है इनकम इक्वालिटी को, दिस इज ऑल्सो ट्रू। वाई? बिकॉज जो हम बात करें इंक्लूजन की, आपको बैंक के थ्रू सर्विसेज मिलती है, यू आर ट्राइंग टू सेव योर मनी, यू आर एक्चुअली गेटिंग ऑप्शन टू इंक्रीज योर मनी। ठीक है, सेविंग पे भी कुछ इंटरेस्ट मिलता ही है। ओके। Enough access to financial services for all segment of society, this is also true. Why? Because you are giving फाइनेंशियल सर्विस में होता क्या, आप देखो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, चेक फैसिलिटी है, ठीक है, बैंक ट्रांसफर है। अब ये हर किसी के पास है, यूपीआई आ गया, पेटीएम आ गया, आईएमपीएस है, एनईएफटी है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। एनकरेज करता है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, ये गलत है। ये वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 only. Okay. Now let's move on to question number 10. What distinguishes the primary market from the secondary market? Right. So this is another question and we are midway through of our journey, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी मार्केट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। पहला ऑप्शन क्या है, प्राइमरी मार्केट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सी प्राइमरी का मतलब क्या, फर्स्ट, पहला। ठीक है, तो इसमें एग्जिस्टिंग की तो बात ही नहीं आएगी। लॉजिकली हमेशा याद करो, प्राइमरी मतलब न्यू, कुछ पहली बार नया आ रहा है, नया इशू हो रहा है। तो आपको पता है कि क्या क्या तरीके जिससे आप शेयर्स को पहली बार इशू कर सकते हो। आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, आप बॉन्ड्स को भी इशू कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दिस आर प्राइमरी मार्केट्स, मतलब फर्स्ट टाइम द कंपनी इज गोइंग पब्लिक, they are actually allowing the local people to buy those share for the first time, so that is through IPO. फिर follow on public offer भी करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू द पब्लिक, वी आर एक्चुअली गेटिंग द मनी फ्रॉम अ लिमिटेड पीपल। ठीक है, जैसे हम शार्क टैंक का बोल सकते हैं। ओके। सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्व्स इश्यूएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी, गलत ही हो गया, वो भी गलत है। तो प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन इशूअर्स एंड इन्वेस्टर, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सी होता क्या है, प्राइमरी मार्केट में जब आपका आईपीओ लग गया, सो यू ओन दैट शेयर, नाउ यू वांट टू सेल दैट शेयर, यू नीड अ बायर। ठीक है, तो आप सेलर और एक बायर हो, उसके लिए क्या है, आप सेकेंडरी मार्केट जाओ, और जब सेकेंडरी मार्केट है मतलब लिक्विडिटी भी है। एक अच्छी सेकेंडरी मार्केट होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या है, आपकी लिक्विडिटी मिले स्टॉक को, और उस लिक्विडिटी से आप अपने शेयर्स को बेच सकते हो किसी भी टाइम पे, एंड दैट इज हाउ योर सेकेंडरी मार्केट शुड वर्क। So option number 3 and 4 are the right answer of this particular question. So that brings to an end of all 20 question videos of what we have covered. Now, if you are new on the channel, you don't know about this, but we also help you to prepare for paper 1 UGC NET, and this is common to all, paper 1 सबके लिए common है। So if you one of those guys who want to learn about something from scratch, कुछ भी आपकी कोई भी यूनिट में प्रॉब्लम है, सो व्हाट यू कैन डू इज क्लेम यूजीसी नेट एसेंशियल फ्री बुक। हाउ? बेसिकली say hi on this WhatsApp number 9873907600 and claim ebook for all the 10 units that you want to. ठीक है, क्लेम करो, लर्न करो, उससे जानो आपको कितना आता है, आपको नहीं आता, जहां से भी पढ़ना है, एवरीथिंग इज देयर, राइट, एंड इट्स फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, right? And one more important thing, that thank you all for rating our Google our app on the Google Play Store. So those who are not aware about it, Talent Blazer has a app on Google Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below, and it has been received a fabulous rating of 4.8, and the love and the appreciation that you have shown, the thank you for that, and thank you for watching this video till the end. Like the video if you like the content that we are making, subscribe to the channel if you are new here,
And if you want to prepare for, if you're serious about UGC net preparation, do subscribe to the channel and share this video with your aspirant friends so that they also practice for what might end up in their examination. ठीक है, उसके बाद अब मैंने जैसे बोला था कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो कमेंट सेक्शन में डू मेंशन योर स्कोर आउट ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट इट राइट. 20 में से कितने सही हुए 20 क्वेश्चंस में से. इफ यू आर एंडिंग अप एनीवेयर इनटू 16 इनटू 20 राइट ऑप्शंस, आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, व्हाट यू बेसिकली हैव टू डू इज मॉक टेस्ट पे फोकस करो. इफ यू आर समवेयर बिटवीन 12 टू 60, व्हाट यू हैव टू डू इज रिवाइज, बिकॉज अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है. एंड एनीथिंग बिलो दैट, बिलो 12 इज बेसिकली लर्न, पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज माई एडवाइस इफ योर स्कोर इज लैंडिंग एनी अप बिटवीन देयर. ठीक है, सो मेंशन करना अपना स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी है जरूरी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी. ठीक है, और भूलना मत टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो व्हेनेवर आई कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो you get notified for the same. So thank you all for watching this video and I'll see you in the next class.